इंडिया से क्यों जो है हम जाके तकलीफ उठा के पैसा खर्च करके बाहर जाके जो है ना आप स्ट्रगल करें। Hello and welcome to another Coffee with Coach session at Skills Rediscovery. My name is Rushal and today we have a very good trainer for digital marketing. His name is Mohammad Rizwan. He comes from Telangana. But before we get to the Coffee with Coach session, let me talk about Skills Rediscovery. सो स्किल्स रीडिस्कवरी जो है ये एक ऑनलाइन कोर्स लिस्टिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें बिजनेस से लेके क्रिएटिविटी तक, टेक्नोलॉजी से लेके लाइफ स्किल्स, हर किस्म के ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं। और इनकी खास बात ये है कि ये कई सारी भाषाओं में है। सो इंग्लिश, हिंदी एंड लॉट ऑफ अदर रीजनल लैंग्वेजेस, इन सब भाषाओं में कोर्स मिलते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि जो ट्रेनर्स हैं उनके साथ स्टूडेंट्स जो हैं वो 1-to-1 लाइव सेशन में भी जुड़ सकते हैं और उनके साथ सो इट्स नॉट अ रिकॉर्डेड सेशन, वहाँ पे लाइव ट्रेनर्स हैं जो ट्रेनिंग करते हैं। कभी कभी इंडिविजुअल बैचेस भी होते हैं, कभी बैच में भी होता है, जैसा भी है, लेकिन एक पर्सनल कनेक्ट रहता है। सो अगर आप चाह रहे हैं कि आपके स्किल्स के जरिए आप कुछ नया अपने करियर में उड़ान भरना चाहते हैं या फिर आप बस अपनी स्किल्स अपनी हॉबी के लिए डेवलप करना चाहते हैं, Skills Rediscovery is the place for you. So today we are joined by Mr. Mohammad Rizwan. So Rizwan, welcome to this Coffee with Coach. Thanks, Rushal. Thanks for welcoming you to your session. So Mohammad Rizwan जो है, he comes from Telangana और उनकी जर्नी रही है 6+ years की जर्नी, उन्होंने प्रोफेशनल जर्नी की है ये इसी डोमेन में। और उसके बाद फिर उन्होंने अपना खुद का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी चालू किया है और उनके स्किल्स रिडिस्कवरी पे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है जिसका नाम है बिकम अ सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल। और ये कोर्स भी 3 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, सो इंग्लिश, हिंदी एंड तेलुगु। लोग यहाँ पे व्यूअर्स हैं हमारे साथ जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, उनको हम बता दें कि ये सारी बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। आज हम और बात करेंगे रिजवान के साथ कि उनकी जर्नी कैसे रही। सो रिजवान, बताइए कि आप हमेशा कॉलेज लाइफ में भी सोचा था कि आप इस तरह से ट्रेनिंग में आएंगे या बस करियर जिस तरफ लेता चला गया उस तरह से इंटरेस्ट बनता गया एंड देन यू फाइनली डिसाइडेड टू कम हियर? सो हाउ हैज योर जर्नी बीन? Let me start with my graduation because I was I'm a student of computer science background. I was, and so I don't have any idea regarding what my future will be. I just following the flow of the the IT industry where it's going on. So I took the BTech and I took the also course of CSC and जैसे बोलते हैं ना कि भाई सब लोग जा रहे हैं तो उसे रास्ते चल जाओ, तो मैंने जो है ना वैसे जो है ना I started my graduation. But when I was attending interview for the IT, I also learned course called Java and C++. Lot of courses I've learned in graduation. Yes, that engineers do. Yeah. So when I started job application, I got fail in 40 companies in first round only. That's called aptitude test. So I have a like to join in a software job, but my future is something saying no, this is not your field, because I cannot excel in this software field because my inner side is instinct is saying that this is not your field. I struggle a lot of I attended a lot of interviews. Then in 2000 I completed my graduation in 2010, okay, as a BTech computer science engineer. I also got distinction pass, 70 marks and pass in the this. Wow. But still it's only degree. I don't have any that much skills at the time. So then I thought, when we applying job, I thought this is not my field. And my friends are they join a very good company, Infosys and a very different company, Infosys also in software. But I am the guy slumdog millionaire कहते हैं मुझे मेरे ग्रुप में, क्योंकि I didn't crack the any interview of IT software jobs. Then I thought मुझे मेरा जो किस्मत बोलते हैं तो वो मुझे गाइड किया कि तेरा फील्ड ये नहीं है, तेरा फील्ड कुछ और है. Then when I was searching for my field, suddenly there is one job requirement in 2011. So that's after one year of my graduation completion, then I got one opportunity to that's called SEO position. So it was a start of digital marketing.
people won't say on those days digital marketing, they say at the SEO, search engine optimization. So I start with the minimum salary, and I asked the interviewer, what is SEO? I don't know SEO. He said, you first join the job, then we will let you know what is SEO. In 2011, then I started as a SEO executive. Then after that, in 2012, the company got wind up due to some reason. Then we applied for the second company, that's called iBuildSoft, INC. So it was in it is in US as well as also Hyderabad. So there I joined as a SEO analyst. So then I worked for the company and I learned a lot of things in the iBuildSoft. Then after that, I worked for almost 1 year 3 months in the iBuildSoft. So 2011 to 2012 in Spider, then 2012 to 2013 iBuildSoft. So after that, due to salary problem, then I left from the company and I joined JB Soft Consulting NC. It's also based in USA as well as in Hyderabad. So it is a complete recruiting firm, and also they have a website called NFC Business Card. There you cannot bring multiple business cards. Just bring one NFC business card and tap with the other phones. You will contact will be shared to the mobile phones. So then I got one opportunity to start with in digital marketing e-commerce domain, because previously I worked with only the service part of the digital marketing, but now I got first opportunity, this basic opportunity that is called as a small e-commerce website I got. And then from the third company we started the trainings. Why? Because for e-commerce one man cannot handle one website. So for that, what we thought is, let's give the opportunity for the students, especially from IIT students and students. So we informed them, and they came to the company and they joined the internship program. So in the internship program, we used to get the work done by them for our website, and they will get the training, real practical training with the certification of the company. So now so after the training, then I worked for 3 years, training as well as service. So both roles I am doing there. One is doing service, promoting the website, and second is training. So then fourth company I joined after 3 years. I resigned again JB Soft Consulting. I joined the fourth company called AppWorld. So AppWorld is a turning point for my career, because this in its 2011 to I think 2016 is the one part of journey. Now after 2016, I also did MBA in this tenure. I will explain in the question round. You ask, right? So after joining AppWorld, then suddenly I got one big project called e-commerce. Second, a big e-commerce. In the JB Soft, I got small project only, e-commerce, selling the online NFC business card. But coming to AppWorld, it's a Apple authorized reseller. They used to sell iPhones, MacBook, which are big value. You all guys know that the Mac is almost 1,50,000 and 2 lakhs, right? So suddenly my CEO, he told me, this one, appworldin.com is a website. Now we hired specially one guy, you, for this portal. There is no team, and he said, this is a portal, e-commerce portal. There are n number of products are there, and he said, Rizwan, you are the only person. You have to get the sale. And I don't have that much experience to get the sale on the website. I have little bit, but I don't have this kind of business, because it's a lakhs of business, 1 lakh, 2 lakhs. So then I said to my CEO, sir, I need team. Even Dhoni want to win the World Cup, he need 12 members, right? 11. So he said me, Rizwan, you get one sale on product. I am giving 3 months to you, because in companies 3 months is the probation period for every employee. I think so, almost companies. After you get hired. So he offered me, if you get one sale, then I will bring one person. I will bring you team. If you're getting the sale, first give one sale, I will bring you one person. If you're getting the sale continuously, then I will bring your team. Example, graphic designer, content writer, video editor, SEO guys also. Because e-commerce is it's not a joke, because it should be a complete ecosystem. Then we used to promote in the that appworldin.com through Facebook and Google, and suddenly we got one call from Kerala. He was student, and he
call us or to support our customer support center, and then the call come to me, and because here online business trust factor is very important. So he want to purchase iMac for his studies, and that iMac is cost almost 1,48,000 the value. Still I remember that the product value, because it's the first e-commerce big order in my career life. So, and it is a trust factor, and he's asking me how can trust you guys. I said simple one answer, sir, if you type AppWorld in google.com, we have almost 1,500 reviews. If someone type, even sitting in USA also, iPhone service center in Hyderabad, AppWorld is the first in the top listing. AppWorld will come with the 1,500 reviews, and that too 70% is positive reviews and 30% are medium reviews, and 10 are negative. So by seeing the reviews, he got trust, and suddenly he made the payment. I don't know that he did a payment, and when I went to the break and come back to me, suddenly my CEO, he called me in the office room, and he gave me the sweet. I suddenly shocked, sir, why you're giving sweet? Because Rizwan, on our portal, the first order 1,48,000. He surprised. I also surprised, because 1 lakh is my career is a very very big milestone. The third question I will ask me in that, so I will let you know. So वो जो 1,500 रिव्यूज थे, वो तुम्हारे काम की वजह से वो रिव्यूज हुए थे कंपनी के? नहीं, मेरा काम का नहीं, इसमें दिस टीम वर्क. This teamwork. Example, I will let you know. I was the lead team leader for the e-commerce portal, right? E-commerce department, and we are interlinked connected to the service department. जो reviews लेना काम था ना, this is the the responsible task for the customer service department. तो हमने क्या किया, ये आइडिया किया कि कोई भी कस्टमर आता है, अगर अपना डिवाइस रिपेयर कराता है, आईफोन या मैक होगा जो भी है, तो उसका रिव्यू लेना मत भूलिए at any cost. So the department they did very very good, great work. They have took almost per day 5 reviews per day, 5 to 10 reviews per day also. क्योंकि हमारा जो वॉक-इन था, कस्टमर वॉक-इन सर्विस सेंटर पे आईफोन का, वो ऑलमोस्ट 30 वॉक-इन्स पर डे था, 30 वॉक-इन्स पर. तो उसमें से ये लोग जो है ना, कस्टमर को जो है जो रिपेयर कराता है, इफ दे सैटिस्फाइड देन ओनली दे विल टेक रिव्यूज. सो वैसा जो है वो लोग पहले लोग उतना, व्हेन आई जॉइंड द रिव्यूज आर ऑलमोस्ट 50, आई थिंक सो 70-50 करीब थे, ऑलमोस्ट नियर बाय 100. सो देन वी कंप्लीटली नॉट ओनली वन गाय का यहाँ पे मेहनत नहीं है, पूरे टीम का है यहाँ पे. ई-कॉमर्स डिपार्टमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, ई-कॉमर्स एंड कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट. सो आई हैट्स अप टू द गाइस कि जो काम कर रहे हैं, क्योंकि रिव्यू लेना कस्टमर का जो बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है. तो वो 1500 रिव्यू हमने पूरा टीम वर्क मेहनत करके जो है ना वो किया है. तो वो देख के उसने ट्रस्ट बिल्ड किया है, क्योंकि ऑब्वियसली रिव्यूज आर द ट्रस्ट फैक्टर. इवन इफ यू टेक Amazon also, Flipkart also, people what do you see? The reviews, they see the reviews and negative and positive. So जब पेमेंट आ गया तो everyone is shocked. Suddenly when I come after break, and CEO he is with the sweet box, and उसने वो सर ने जो है ना स्वीट जो है ना मुझे अपने हाथ से खिलाया. रिजवान, ये हमारा पहला सक्सेस है ई-कॉमर्स का. Then after he really, as he said to me, he really appointed one person one by one. He given me one guy, his inventory management especially. He guys to you upload the product on website, उसका price, stock management, inventory management, एक ही बंदा. And he upload daily almost 10 to 11 products वो daily करता रहेगा, क्योंकि उसका डिजाइनिंग को करना है, अपलोडिंग करना है. तो अब आइए ये ई-कॉमर्स स्टार्ट हो गया. उसके बाद हमारी टीम बढ़ते गई. देन इसमें इतना एक्सपीरियंस मिला है मुझे कि I was joined as a digital marketing SEO. After 3 years, I also got appointed as a marketing manager in the same company. I have to now my responsibility is take care of digital marketing department and offline marketing also. क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग तो एक सोर्स है कि कस्टमर को ऑनलाइन से खींच के लाए. सेकंड जो सोर्स है वो है मेन क्या है, क्योंकि हमारा जो सेंटर था वो एकदम था मेन रोड पे, हैदराबाद में मेन रोड पे था. बिकॉज आई वाज इन द हैदराबाद, because I stayed from 2006 to 2020 till lockdown. I was in Hyderabad. My study BTech जो भी वहाँ पे हुआ था. तो हमारे जो ऑफिस था उसके सामने जो सेंटर था, सेंटर, एंड वी आर नोन इन हैदराबाद. एप्पल मींस आईफोन का नंबर 1 सेंटर एप्पल. सो एप्पल के सामने मेन रोड था, वहाँ पे पूरी ट्रैफिक. आई थिंक हाईटेक सिटी इन हैदराबाद, इवन हाईटेक सिटी, इवन आरजी एयरपोर्ट, राजीव गांधी एयरपोर्ट जो भी बना है, उसका जो भी ट्रैफिक जाएगी वहां से गुजरेगी. तो हमने वहां पे क्या किया, वी
team got one idea कि let's give the one offer that is called iPhone screen replacement, because generally जो ना स्क्रीन का जो है ना बहुत कॉस्ट होता है iPhone का, you also know. तो वहाँ पे क्या किया, हालांकि ये ऐप वर्ल्ड है वहाँ पे, बट पीपल ठीक है 30 वॉकिंग्स आ रहे हैं, उसको कैसा बढ़ाए. तो टीम ने आइडिया दिया कि लेट्स गो विद द क्रैक डिस्प्ले, बोर्ड लगा दो बाहर, दैट्स इट. क्रैक डिस्प्ले के मतलब है कि यहाँ पे सर्विस सेंटर है, जो नया लोग है उसको दिख जाएगा. तो 30 से हमारा जो वॉकिंग रेशियो हो गया ऑलमोस्ट पर डे 60 का, पर डे 60. तो देन the company appointed as the pressure the team, and they appointed me as a marketing manager who can take care digital marketing department as well as the offline marketing also. He can go for the roadside marketing and hoardings लगाना, जो भी printing कराना, जो भी है. उसके बाद then मेरा प्लान था कि when I did the MBA, I thought to start my own business, but जब कुछ हेक्टिकल्स थे कि उसकी वजह से जो है ना मुझे स्टेप बैक करना पड़ा. देन आई जॉइन द ऐप वर्ल्ड. सो ये भी एक रीजन है कि किस्मत जो है ना आपको कुछ, व्हेन यू आर नॉट, जब आप उतना स्किल नहीं है बिजनेस रन करने का, तो जो है ना ऊपर वाला जो है आपको जो है ना थोड़ा और ट्रेनिंग देके जो है ना देन बिजनेस के मतलब पूरा बिजनेस समझाने के लिए जो है ना ऐप वर्ल्ड इज द अल्टीमेट टर्निंग पॉइंट देयर. वहां मुझे इतना मिला कि एक बिजनेस को कैसे संभालना चाहिए, मतलब कस्टमर स्टार्टिंग से लेकर तक जो है ना उसका पूरा प्रोसेस जो है ना. If I start before app world, then I think maybe I may lose. I will lose in business. Startup जो है ना आजकल जो होते हैं वो ऐसे ओपन करते हैं, they will end up. But app world में जितना मुझे बोलते हैं ना कि सोने को जो है रगड़ के जो है ना शाइन दिया जाता है, तो app world में मेरी वैसी ट्रेनिंग हुई क्योंकि I joined as a one person, I end up with the 15 team members. So amazing. बहुत बढ़िया. So I thanks to Almighty because he is the ultimate guide, guide. So definitely. Then I resigned app world because pandemic के बाद जो है ना बहुत सारे, I think you all know people कि बहुत सारे economic मार गिरा है. And because लॉकडाउन जैसा होता है ना कि हमारा बिजनेस था वॉक इन का, कस्टमर जब कस्टमर वॉक इन है तो क्या होगा ऑब्वियसली, राइट. तो देयर इज नो कैश फ्लो. तो then I got one idea, this is the best time because now लॉकडाउन हो गया है and Almighty given my idea कि अभी लॉकडाउन हो गया है, everyone is now sitting at home, टाइम अपना जो स्पेंड पूरा घर पे कर रहे हैं. so this is the time now. मेरे जो घर वाले भी जो ना फैमिली बोले कि यार तू आप जॉब क्यों छोड़ रहे हो, अगर ठीक है आप जॉब दूसरा देखना चाह रहे हो तो आप एक जॉब रखते हो, अपना एक साइड में जो है ना स्टेफनी आप रखते रहो. मैं बोला ना क्या कर रहे हो हमारा, अभी डिसीजन लेना है बिजनेस का. मेरे पास कुछ कम पैसे थे, आई थॉट डिसीजन की ना अभी कुछ भी हो लाइफ में, अभी बिजनेस जॉब छोड़ना. क्योंकि व्हाई आई हैव टेकन डिसीजन, बिकॉज इन कंपनीज एट वन पॉइंट आपको स्टॉक मिलेगा, बिकॉज आपके आइडियाज कुछ लिमिट तक अप्लाई होंगे, बिकॉज देयर इज सो मच पॉलिटिक्स इन द कंपनी. दूसरा लोग जो है ना वो अब आपको दे कांट स्टॉप यू, बट स्टिल दे विल, आपके जो आइडियाज है ना उसका मजाक उड़ा जाएगा. सिंपल बहुत फेवर नहीं करेंगे उसको, क्योंकि कोई एक आगे बहुत नहीं जाना चाहिए. एग्जैक्टली आपका आइडियाज के जो है ना धज्जियां उड़ जाएंगी. मतलब पीपल विल नेवर एक्सेप्ट योर आइडियाज, इवन समटाइम्स योर CEO also when it is good idea also they won't accept. Then जो है ना आपका इनर होता है ना जो सोल है या फील है, जो भी आपका हार्ट बोलेगा यार आप इसके लिए नहीं बने हो, यू आर नॉट कि बस मेजर लाइफ यही है, आई एम स्टिक टू दिस ओनली. देन मेरा जो अंदर का जो है ना इनर साइड बोला कि रिजवान यार आप जो है यू आर कम टू द फॉर एक्सप्लोरेशन, डिस्कवरी, क्या बोलना चाहिए, एक वर्ड याद नहीं आ रहा है, तो मतलब वो कॉन्कर करने के लिए यहाँ पे. तो देन आई थॉट कि नाउ दिस इज द पॉइंट. कोई भी बोले, फैमिली बोले कि अभी डिसीजन ले लो, alhamdulillah I have taken decision कि now start business. I reached the agency in my hometown because I was staying in the rent house in the Hyderabad. अब अगर if you want to register the agency in the rent house then people won't accept क्योंकि वो उसका घर है. तो यहाँ पे मेरे होम टाउन में जो है ना यहाँ पे अपना ओन घर है, तो I have registered in the my ये लोकल लाइसेंस अप्लाई किया है, शॉप लाइसेंस के, ट्रेड लाइसेंस के लिए. तो आई गॉट ट्रेड लाइसेंस, आई गॉट गवर्नमेंट सिलेक्शन फ्रॉम द तेलंगाना फॉर द टू बिजनेस, कमेंस अ बिजनेस, एंड देन वी हैव आल्सो टेकन द डोमेन वेबसाइट. एंड जो टीम एप्पल में थी वो टीम ही जो है नाउ हम वर्चुअली हम काम कर रहे हैं. जो एप्पल में थी कि एवरीवन नाउ लेफ्ट आफ्टर पैंडेमिक, एवरीवन लूज द जॉब एंड समवन रिजाइन, समवन दे विल. सो अभी हम लोग वर्चुअली काम करते हैं, बट हियर फिजिकली लाइसेंस हमारा ऑफिस है होम टाउन में, बिकॉज कोई भी जो है ना होम टाउन नहीं आएगा ट्रेनिंग के लिए. तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि
एम्मा मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, हमारा जो रजिस्टर्ड नेम है वो है एम्मा मार्केटिंग सर्विसेज, इज अ रजिस्टर्ड नेम, लीगल नेम इन द गवर्नमेंट तेलंगाना। तो हमने ये ब्रांच के थ्रू जो है ना एक साइट ओपन करके वहां पे वी आर रनिंग टू काइंड ऑफ प्रोसेस। वन इज सर्विसेज, गिविंग सर्विस टू द पीपल हु आर इन द बिजनेस, उनको सपोर्ट करना, प्रमोट करना, उनका ये अलग पार्ट है। सेकंड क्या है, पैंडेमिक जो है ना, कई लोग जो है ना मतलब घर पे बैठ के है अपना टाइम एंड दे लॉस द जॉब्स। इवन I saw one Scrum Master, he is 10 years experience guy, वो कनाडा में बैठ के जो है ना LinkedIn पे he is saying I lost the jobs, I have 10 years experience। मतलब इतना वो हो गया है। तो लेट्स थॉट कि ठीक ये तो जॉब के लोग है, they have some bank accounts, but वो जो फ्रेशर्स है इंडिया में जो प्रॉब्लम है वो स्पेशली घर बैठ, स्किल्स है, पीपल हैव स्किल्स, कोई भी ऐसा नहीं है कि इसके पास स्किल है, बट उसको जो है पॉलिश करना है। ओके, पॉलिश करें, किसी को बात करने का स्किल है, इंग्लिश का स्किल है, किसी को जो है मालूम भी होना चाहिए कि क्या स्किल कहाँ यूज करनी है, कब यूज। एग्जैक्टली थैंक यू सो मच विशाल। देखिए तो कहाँ चीज जैसे बोले कि तो हमने यहाँ पे चीजें की यार, ठीक है कोर्स तो है, वो एक पेड पार्ट है, हम जो है ना बेसिक ट्रेनिंग दे देंगे डिजिटल मार्केटिंग, इसके थ्रू जो है ना वो अपना कुछ ना कुछ जो है ना अपना स्किल बढ़ाएगा। एंड एग्जैक्ट व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ही नो व्हाई वी हैव टू लर्न, वेयर वी हैव टू अप्लाई, ये कहाँ पे बेस्ट। अभी जो है ना पैंडेमिक में ये बेस्ट जो है ना आपके लिए टूल है। घर बैठ के अपना एग्जांपल, यू हैव इंग्लिश गुड ग्रामर, यू राइट द कंटेंट, पब्लिश द आर्टिकल, देन एंड द पर वर्ड 1 रुपी। आजकल जो चार्ज होता है कंटेंट का पर राइटिंग पर ओनली 1 वर्ड 1 रुपी। इसका मतलब अगर 500 वर्ड लिखे तो 500 रुपए आपके घर पे बैठे। तो ये हमने क्या किया, जो लोग ऐसे घर पे बैठ के है, जो लॉस हो गया लर्न करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए हमने इंटर्नशिप प्रोग्राम ऑफर किया है। वो है 2 मंथ्स का इंटर्नशिप प्रोग्राम है, जिसमें जो है ना दे विल गो द 5 मॉड्यूल्स, ये फ्री है, दिस इज नॉट चार्ज, एंड दे विल गेट अ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फ्रॉम द कंपनी एजेंसी, एंड आल्सो दे विल गेट सर्टिफिकेशन फ्रॉम द आवर एजेंसी, दे आर ट्रेन्ड। हाँ, अब कोई स्टूडेंट बोला कि मुझे कोर्स चाहिए, आई नीड फुल कोर्स फ्रॉम योर एजेंसी, ओके देयर इज अ फीस फॉर दैट, यू हैव टू, वी टेक 1-to-1 सेशन विद यू। नाउ आफ्टर आई थिंक 2019 जो है ना हमारा ये ब्रांड नेम ऑलमोस्ट 2 years 19, 20, 21, तो अभी जो है 2 साल ये हमारे ब्रांड के कंप्लीट हो गए हैं। सो नाउ दिस इज अ टिल जर्नी ऑफ द फ्रॉम 2011 to 2021। ग्रेट। मेरे को लगता है कि आपकी कहानी इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस देश में हमारे यहाँ पे होता क्या है जनरली कि लोग इंजीनियरिंग करते हैं, क्यों? क्योंकि है, पड़ोसियों का प्रेशर है वगैरह वगैरह, एंड देन पीपल, मेरी भी यही कहानी, मैं भी इंजीनियर हूँ, लेकिन कंप्यूटर इंजीनियरिंग करते करते मेरे को भी 2nd-3rd ईयर में समझ में आया यार कि यार आई एम फॉर दिस, मुझे ये नहीं करना है। अब पहुंच तो गया आप इंजीनियरिंग में, नाउ यू हैव टू तो उसमें से मेरे ख्याल से अपना रास्ता खुद बनाने का हिम्मत रखना, उसका जज्बा रखना और उसको फॉलो करते रहना, आई थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ, और ये आपने बखूबी किया है। सो रियली हैट्स ऑफ टू यू। थैंक्स सो मच। कोर्स की बात कही राइट, तो पहले हमने कुछ टेक्निकल टर्म्स बात की, SEO कहा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या डिजिटल मार्केटिंग डोमेन कैसा होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, और उसको सीख के स्टूडेंट्स या ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल्स अपने करियर में जंप कैसे ले सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग देखिए, मैं सिंपली आपको बोलता हूँ एक मिसाल से कि आज आप इवन लेडीज घर बैठ के चाय बनाने की जो है ना फुर्सत नहीं है चाय बनाने की, वो दे आर पुटिंग जस्ट क्लिक 1 click एंड ऑर्डरिंग ऑनलाइन। इसका मतलब क्या है कि अभी जो है ना एवरीवन दे हैव स्मार्टफोन्स, everyone they have smartphones, right? After the MI जो है ना आईफोन का जो कॉपी करने के बाद, मतलब कॉपी ना तो वो जो स्पेक्स है वो कम रेट में लाने के बाद जो है ना ओप्पो वीवो है। तो आपका जितना भी काम टाइम, स्पेशली हमारा जो मार्केटिंग जो फंडा होता है, यू नो, आई थिंक हच एड wherever you go we follow। तो अभी क्या हो गया है, पहले कस्टमर बाहर अपना टाइम स्पेंड करता था बिफोर कुछ साल पहले, अभी कस्टमर जो है ना इंटरनेट पे टाइम स्पेंड कर रहा है। तो जहां पे कस्टमर अपना टाइम स्पेंड करता है वहां पे कंपनी जो है ना वहां शिफ्ट करना पड़ेगा। तो अभी कंपनीज पूरे शिफ्ट करते हैं कहां पे, आज का दौर है डिजिटल मार्केटिंग। तो दैट्स व्हाई देयर इज ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, गुड स्कोप, वाइड स्कोप डिजिटल मार्केटिंग अभी, इसलिए कि कंपनीज नाउ बिजनेस एवरीवन दे आर स्विचिंग टू द नॉट ओनली बिजनेस, even our Prime Minister Modi also, Mr. Narendra Modi also saying that digital India। तो एवरीवन, इवन आप चाहे का फोन पे करते हो वो भी थ्रू ऑनलाइन पेमेंट, राइट? सो अभी क्या हो रहा है, एवरी बिजनेस नाउ देयर कमिंग टू द स्विचिंग ऑनलाइन मोड। अब डिजिटल मार्केटिंग ऑलरेडी इसका बूम है, अभी इसका बूम और बढ़ रहा है, मतलब
पीक में रहा है, क्योंकि एवरीवन इज कमिंग। स्पेशली पैंडेमिक के बाद तो और ज्यादा हो गया होगा, राइट? और बढ़ गया, क्योंकि अभी ज्यादा जो है ना यूटिलाइज हो गया कि लोग घर बैठ के जो है ना वर्क फ्रॉम होम आ गए। तो 70 पहले था वर्क फ्रॉम होम 0, ऑलमोस्ट आई थिंक 1%। अभी इसका रिवर्स हो गया है, 99% और 90% ले लीजिए आप, वर्क फ्रॉम होम हो गया है। इवन IT आल्सो वर्क फ्रॉम होम। हाँ, कुछ है जो रिटेल स्टोर है वो ऑब्वियसली करना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा, बट सॉफ्टवेयर जितनी इंडस्ट्री है, ऑनलाइन इंडस्ट्री पूरी जो है ना वर्क फ्रॉम कम करिए। इसका मतलब ये है कि आपका डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप बढ़ गया है और ये पीक चलेगा, क्योंकि अभी हमको जो है ना ऑनलाइन एप्स का वर्ल्ड आने वाला है। नेक्स्ट जो है ना एप्स का वर्ल्ड आने वाला, अब आ गया एप्स का नेक्स्ट। तो इसके बाद डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या अलग अलग डोमेन्स होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स सीख के कुछ अपना करियर कर सकते हैं? जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया, वो एक और क्या क्या होता है? पहला है, देखिए डिजिटल मार्केटिंग में आपका जैसे एग्जांपल बाहर होता है आपका स्टोर, रिटेल स्टोर, एवरी बिजनेस हैज अ स्टोर, राइट? दिस ऑनलाइन बिजनेस हियर वी कॉल स्टोर एज अ वेबसाइट। आपका वेबसाइट जो है ना अल्टीमेट आपका कस्टमर लैंडिंग फॉर्म है। तो वेबसाइट डेवलपमेंट फर्स्ट मॉड्यूल। सेकंड मॉड्यूल इज SEO, कंटेंट, सॉरी, क्योंकि वेबसाइट लगते कंटेंट होना पड़ता। सेकंड मॉड्यूल। थर्ड होता है आपका SEO। उसके बाद होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। उसके बाद जो है गूगल एड्स। उसके बाद जो है फेसबुक सोशल मीडिया एड्स एंड दिस कॉल्ड पेड मार्केटिंग कहते हैं, एड्स जो भी कहते हैं। उसके बाद जो है आपका मीडिया, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड वीडियो मेकिंग, ईमेल मार्केटिंग। ये सारे कई सारे हैं, बट दिस इज अ मेजर मॉड्यूल्स इन द डिजिटल मार्केटिंग। और ये सब अपने आप में बहुत स्पेशलाइज्ड फील्ड्स हैं और इसमें हर एक में अलग अलग करियर हो सकता है, राइट? एवरी फील्ड है करियर। लेट्स से फर्स्ट वेबसाइट डेवलपमेंट। अब देखिए वेबसाइट डेवलपमेंट में जो है ना आज कई सारे टेक्नोलॉजीज है, PHP, वर्डप्रेस, एक अब जैसे ई-कॉमर्स बढ़ गया है, ई-कार्ट, ज़ेनकार्ट और कई जो है ना एंगुलर.js, जावास्क्रिप्ट, ये जितने भी टेक्नोलॉजी है ना, ये स्पेशली फॉर द IT, ये पूरा IT का पार्ट हो गया। अब ये सेकंड जो है कंटेंट राइटिंग। अब जो जिसका ग्रामर अच्छा स्किल है इंग्लिश का, मतलब पंचलाइन सीखने का, तो उसके लिए अलग दुनिया है पूरी कंटेंट की, अलग दुनिया है कंटेंट की। एग्जांपल, he can write news articles, he can write website content, he can write stories, he can write video content also। आजकल जो है ना वीडियो के नीचे कंटेंट आता है, पूरा वीडियो का जो इंटरव्यू होता है, आपने मैंने बात किया है, तो दुनिया है। थर्ड हो है SEO तो इतना वास्ट फील्ड है। डेली जो है ना वहाँ पे गूगल के एल्गोरिथम, देयर आर n नंबर और एल्गोरिथम गूगल के होते हैं, वो डेली जो है ना दे अपडेट गूगल एल्गोरिथम्स। तो SEO का जो है ना दुनिया है कि उसमें जो है ना विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल रुपी ऑन एड्स यू कैन ब्रिंग द ट्रैफिक, SEO। तो ये उसका एक ब्यूटी है उसका। एंड उसके बाद जो है पेड मार्केटिंग। आज का दौर जो है ना, लोगों के पास आफ्टर पैंडेमिक पीपल डोंट हैव दैट मच बजट। वो लोग चाहते हैं कि लेस बजट एंड मोर मार्केटिंग, लेस बजट भी, और क्या बोलते हैं, इंस्टेंट। I want instant leads. I cannot wait hold कि मुझे लॉन्ग टर्म मार्केटिंग करना है, मुझे अभी इंस्टेंट, मुझे I need calls। तो इसके लिए क्या चाहिए? पेड मार्केटिंग। फेसबुक एड्स है, गूगल एड्स है, दिस इज द बेस्ट टूल फॉर द पेड मार्केटिंग। उसके बाद होता है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग एक अलग दुनिया है। मतलब जो कस्टमर आपका ऑलरेडी आगे बन गया है कस्टमर, उसको कैसे रिटेन करना, उसका एक डिजाइन होता है, फिर टेम्पलेट वहाँ पे, तो वो उसे कैसे फॉलो अप करे, ये पूरा अलग कॉन्सेप्ट वगैरह। तो उसके बाद जो है एड्स के लिए एक एड्स की पूरी अलग दुनिया है, उसमें बिडिंग होता है पूरा। मतलब आज का बिडिंग क्या है, क्लिक का बिडिंग क्या चल रहा है, उसके स्ट्रेटेजीज क्या है, नए जो है ना फिर फॉर्मुलास क्या आ रहे हैं उसके बिडिंग के, ये हो गया आपका। तो ऐसे कई सारे हैं। ईच एंड एवरी फील्ड इज अ सेपरेट डोमेन द डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट। इसको कहते हैं strategies. These are called as the digital marketing strategies, but whole we call as the digital marketing strategy. ऐसा है। बढ़िया। तो थोड़ा इसके बारे में भी बात कीजिए कि मान लीजिए कोई इंजीनियर है, या मान लीजिए कोई कॉमर्स या साइंस बैकग्राउंड का भी स्टूडेंट है और अब मार्केटिंग सीखना चाहता है, तो वो कितना समय लगता है, क्या क्या घर पे इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा स्टूडेंट्स को, और उसके बाद वो कितने सैलरी की या क्या पैकेज की जॉब्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में? देखिए, अगर इफ यू आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, अगर आप इंजीनियरिंग कर चुके हैं या जो भी है, ये बहुत सीखना आसान है, क्योंकि इसमें जो है ना कोडिंग बहुत कम होती है। IT जो कोडिंग है ना, देयर इज लेस कोडिंग इन द। अच्छा, अगर कोडिंग होती जो ना, हमारा जो ट्रेनिंग, हम ऐसा ट्रेनिंग देते हैं कि आपको जो है ना बिना कोड के जो है ना हाउ टू डेवलप वेबसाइट विदाउट कोडिंग आल्सो वी कैन डू द ट्रेनिंग ऑन वर्डप्रेस। हां, ये हमारा जो है ना ब्यूटी है कि ये वर्डप्रेस यूज करके, क्या वर्डप्रेस इसमें जो है ना एक अच्छा ब्यूटीफुल वेबसाइट विद टेम्पलेट, आप जो है ना कोई भी विदाउट एक नॉन IT स्टूडेंट भी है तो ना, इवन अगर पर्सन इंटर भी पढ़ा है, इंटर
not only graduation, I'm saying inter also, he can also develop your own website for your business. तो ये हमारा ट्रेनिंग का ब्यूटी है. तो any student easily can learn. इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस एक ही पकड़ना है कि मार्केटिंग का कोर कॉन्सेप्ट क्या है, वो आपको समझना पड़ेगा. बस वो अगर आ गया तो ये जितने भी टूल्स है ना, एक गेम है, आपके हाथ में गेम हो जाएगा. तो ये एक चीज है. अब आपने कहा घर पे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट क्या है? एक लैपटॉप, एवरेज लैपटॉप एनी, ज्यादा आपको हाई एंड मत चाहिए, बस मीडियम, एकदम लो एंड भी नहीं, मीडियम एंड लैपटॉप लीजिए. i3 इंटरनेट, that's it. Wow, two things and done. That's it. Great. और कितना महीना लगता है सीखने में? Like how long does it take? अगर आप almost 2 months, ये अगर फुल कोर्स है तो 2 months है. अगर if after 2 months हम क्या कर रहे हैं बोलते, अब कोर्स सीख लिया उसने, मतलब he or she has right now knowledge. Now we will give one opportunity to them, practical exposure. वहाँ पे हम क्या करेंगे, what we do, we give one article, one topic to them, so he or she has to write the content from themselves only, and that content published by us on our company blog. And he has to apply the whatever he learned in digital marketing course on his own blog and to bring the traffic ultimately. क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का एक ही कॉन्सेप्ट है, उसका ऑब्जेक्टिव होता है डिजिटल मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ब्रिंग द ट्रैफिक टू ऑन योर पोर्टल. सिंपल. जो आपका स्टोर है, ऑनलाइन जो स्टोर है आपका, जो जहाँ पे आपका कस्टमर लैंड करता है, वो वेबसाइट है, तो उसके ऊपर ट्रैफिक लाना आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग है. इफ यू टेक वेबसाइट और इफ यू टेक कंटेंट मार्केटिंग, एसईओ, एवरीथिंग व्हिच डायरेक्टली ब्रिंग द ट्रैफिक टू वेबसाइट, वहां पे आपका सेल होगा. इफ यू आर ई-कॉमर्स, कस्टमर गेट डायरेक्ट टू द पेमेंट. इफ यू आर सर्विस बिजनेस, कस्टमर फिल अप द फॉर्म, साइन अप फॉर्म, लीड फॉर्म. ये आपका अल्टीमेट लैंडिंग पॉइंट है बिजनेस का. तो ये देखिए, क्या बोलना चाह रहा हूँ, आपका सवाल कितना टाइम लगता है सीखने में अगर ये अलग-अलग चीजें हैं? हार्डली 3 months, I think 3 to 3 months में इसमें से जो भी आपने वर्टिकल्स बताया अलग-अलग, SEO हो सकता है या वेबसाइट मार्केट, ईमेल मार्केटिंग हो सकता है या डिजिटल पेड वाला, सीखने के लिए 2 से 3 मंथ लगता है. करेक्ट? Enough. ग्रेट. रिजवान, हमको थोड़े, आप क्योंकि पिछले कई सालों से ट्रेनिंग में हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को आपने ट्रेन किया है. आई थिंक यू वर मेंशनिंग 1000+ स्टूडेंट्स का डेटाबेस है, इतने सारे लोगों को आपने किया है जी. तो आपके कोई स्टूडेंट्स के अगर सक्सेस स्टोरीज हमारे साथ शेयर करना चाहें तो? ऑब्वियसली देखिए, हमारा जो व्हाट वी आर फोकसिंग इज, जॉब तो है, एवरीवन वांट टू जॉइन जॉब आफ्टर द जॉइनिंग कोर्स. व्हाट वी आर फोकसिंग, वी वांट टू बिल्ड एम्पावर द एंटरप्रेन्योर्स. क्योंकि इंडिया से क्यों जो है हम जाके तकलीफ उठा के पैसा खर्च करके बाहर जाके जो है ना आप स्ट्रगल करें, कि आप इंडिया में बढ़ के जो है ना, इंडिया में इतना अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यू हैव स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल जो बिजनेस है, दे डोंट नो हाउ टू प्रमोट देयर बिजनेस. नो, यू कैन टैप दिस अपॉर्चुनिटी. व्हाट वी आर डूइंग इज, विद हेल्प ऑफ दिस ट्रेनिंग, वी आर ultimate objective is to bring the entrepreneurs in the market. अभी मेरा एक if you want example, कि मेरा एक स्टूडेंट है, रिसेंटली से कॉल किया, सर मुझे कुछ हेल्प चाहिए. व्हाट इज हेल्प यू वांट? सर आई नीड गूगल एड्स. एक क्लाइंट से जो मेरी बात चल रही है, एंड ही सेड आई ओपन माय स्मॉल एजेंसी. वाओ. ही सेड आई ओपन माय स्मॉल एजेंसी आफ्टर आवर ट्रेनिंग. ही सेड कि सर मुझे कुछ हेल्प चाहिए. चलो यार, मेरा स्टूडेंट है, हमारा स्टूडेंट है, तो ही सेड कि सर कोटेशन चाहिए मुझे. एक क्लाइंट से बात हो रही है कि वो गूगल एड्स के ऊपर जो है ना कुछ बता रहे हैं, आप मुझे हेल्प कीजिए. तो दिस फील की हैप्पी, चलो यार, एक लड़का अपना मतलब स्टार्टेड ओन बिजनेस. हाँ ठीक है, अगर सेकंड इफ यू वांट टू डू बिजनेस, देन सेकंड है कि कैरियर अपॉर्चुनिटी बहुत है. अभी कुछ लोग मतलब कंपनीज मुझे कॉल करते हैं कि वी वांट इंटर्न्स फ्रॉम योर एजेंसी, आप कुछ है तो रेफर कीजिए. तो हम जो है ना, हमारा रेफरेंस लेके जो है ना, जो इंटर्न्स हमारे हैं, वी विल सेंड देम द एग्जांपल. हैदराबाद में वॉक इन है या कहाँ पे इंटरव्यू है, तो वी विल रेफर देम फॉर द, दिस इज कॉल्ड जॉब असिस्टेंट. तो ये भी हम जो है ना उनको प्रोवाइड करते हैं हमारे इनसे वगैरह. तो ये हमारा सक्सेस. और एक जो स्टोरीज है कि जैसे मैं कहा कि एक स्टूडेंट कहा मुझे कि सर आपका जो ट्रेनिंग है, व्हेन आई कंपेयर ऑल द ट्रेनिंग्स एंड शी सेड कि देयर आर some difficulties, there are some difficulties to understand the concept of digital marketing, but your training is a layman also can easily understand कि आप इतना सिंपल आपका कॉन्सेप्ट है समझाने का,
कि वो उसने कहा दिस इज वन अचीवमेंट है. एंड वन स्टूडेंट he don't know all that much English language. I think she is from I think Urdu medium. उसने क्या किया, क्योंकि हमारा जो ट्रेनिंग है ना उसमें हम हिंदी कवर करते हैं, तेलुगु कवर करते हैं, इंग्लिश कवर करते हैं एक ही साथ में. तो उसने क्या किया, उसको इतना अच्छा लगा कि जितने भी उसके फ्रेंड्स है वो सबको जो है उसने फॉरवर्ड कर दिया. एंड दिस बेसिक ट्रेनिंग वीडियो एवरीवन इज वाचिंग इन इंडिया, नॉट ओनली इंडिया. अब बता दूं कि हम लेबनान से and to Cairo, Egypt and Malaysia, Indonesia, यहाँ से जो है ना students और especially students, they saw on LinkedIn and they came back to us on our number कि उसका प्रूफ भी मेरे पास कि एक लड़के ने जो ना लेबनान से, सर हम लेबनान से हूँ मैं, आपका अच्छा दिखा इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, आई वांट टू जॉइन योर ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्रॉम लेबनान. आई डिडंट इमेजिन कि कहाँ से लोग आएंगे हमारे पास. डिजिटल मार्केटिंग. तो ये जो 900 डेटाबेस बना है इसमें इंडियंस है, हमारे जो लोकल ऑडियंस कस्टमर स्टूडेंट्स है वो तो है, बट जो इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इसमें ज्यादा जो थोड़े बाहर की भी ज्यादा है. एग्जाम्पल इजिप्ट, मैंने कायरो कहा, कायरो सिटी ज्यादा है. और एक आई थिंक यू नो दिस वन केन्या जो है ना उधर तरफ से, जो साउथ अफ्रीका उधर है. कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया से एंड मलेशिया, इंडोनेशिया, तो यहाँ जो है ना ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं, मतलब अप्रोच हुए हैं. एंड कुछ लोग वीडियोस देखे. हमारा जो प्रोसेस क्या है बोलते, हमने जो हमारा पहला बैच था ट्रेनिंग का, उसके वीडियोस ऑनलाइन पे है बेसिक ट्रेनिंग के. तो वो वीडियोस हम हर जो स्टूडेंट है उसको हम वी शेयर टू देम कि आप ये ट्रेनिंग ले लीजिए, देन यू कम विद इंटर्नशिप प्रोग्राम. आपको लाइव जो है पूरा ट्रेनिंग हम लाइव प्रोजेक्ट देंगे, नॉट ऑन लाइव ट्रेनिंग, लाइव प्रोजेक्ट देंगे, जिसमें जो है वी शो ऑन गूगल एनालिटिक्स कि आपका ब्लॉग रिटन बाय योरसेल्फ ओनली, हाउ मच योर कंटेंट इज एक्वायरिंग अट्रैक्टिंग कस्टमर्स, हाउ मच यू आर ब्रिंगिंग ट्रैफिक थ्रू एसईओ जो आपने करा है, जो भी ट्रेन किया है, ये पूरा. तो ये पूरा हम बच्चों को दिखाते हैं कि लाइव की आपका परफॉर्मेंस ये है, रिकॉर्ड ये है आपका. दिस इज योर. बहुत बढ़िया. एक्चुअली स्किल्स रीडिस्कवरी का भी यही सोचना है कि यू हैव टू बी लोकल बट यू कैन टीच एंड यू कैन अर्न ग्लोबल. और वही मेरे आप रिजवान कर भी रहे हैं, सो कुडोस टू यू फॉर दैट. मैं बता दूं कि रिजवान का जो कोर्स है हमारे स्किल्स रीडिस्कवरी पे, वो 100 आवर्स का कोर्स है, करेक्ट. एंड उसमें ये चीजें कि जिसमें आप खुद ही अपना कंटेंट भी लिखेंगे और फिर उसी की आप मार्केटिंग करके उसका हम डेवलप करेंगे और उसी से आप भी तय होगा, और वो आपका एक ऑन द हैंड ऑन द फ्लाई प्रोजेक्ट किस्म का हो गया. तो ये जरूर स्किल्स रीडिस्कवरी की वेबसाइट से आप अवेल कर सकते हैं. रिजवान, क्योंकि आप तेलंगाना से हैं और आपकी नेटिव लैंग्वेज जो है वो तेलुगु है, और क्योंकि हम भी एज अ प्लेटफॉर्म मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट करना चाहते हैं, तो एक मैसेज मैं चाहूंगा जो आप सारे स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं, लेकिन तेलुगु में. ఓకే. సో మీరందరికీ ఫ్రమ్ ఎమ్మా మార్కెట్ నుంచి ఒక మెసేజ్ ఏంటంటే, మీరు మీ ఇంటి నుంచి బిజినెస్ చేయాలనుకుంటే మీరు ఎమ్మా మార్కెటర్ ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ తీసుకోండి. డెఫినెట్గా ఆఫ్టర్ ట్రైనింగ్ మీరే మీ ఇంటి నుంచి మీరు మీ బిజినెస్ని స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. అర్థమైందా? ఇది జస్ట్ ఊహలు కాదు, ఇది ప్రాక్టికల్ వర్డ్స్ అనమాట, నేను చెప్పేది అనమాట మీకు. సో మీరు ఈ అప్రోచ్ తీసుకోండి, మీరు అవైల్ చేయండి, తర్వాత లెర్న్ చేయండి, తర్వాత అప్లై చేయండి మీ యొక్క ఓన్ స్కిల్స్ మీద. తర్వాత మీరు మీ యొక్క ఓన్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసుకోండి. లేదా మీకు ప్లాన్ లేకపోతే కూడా మీరు మీరు మీ జాబ్స్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ మీరు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ జాబ్స్ ఉన్నాయి, మీరు అక్కడ అప్లై చేసుకోవచ్చు. శాలరీ వచ్చేసి మీకు మినిమం ఆల్మోస్ట్ 20,000 యావరేజ్ శాలరీ మీరు 20,000 ఎర్న్ చేసుకోవచ్చు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ స్టార్టింగ్ అంటున్నా. Because as executive people won't pay that much you, but if you have good skills then you can ask up to 30,000 per month అలా మీరు చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇది మంచి అవకాశం మీకోసం, స్పెషల్లీ. దట్స్ వై తెలుగులో యాజ్ రుషాల్ గారు చెప్పడం వల్లనే నేను మీ తెలుగులో మొత్తం మెసేజ్ చెప్తున్నాను. సో ఓకే రుషాల్ గారు. ओके या आई थिंक मेरे को समझ में आया वो ये है कि ये कोर्स होने के बाद सिर्फ जॉब नहीं तो एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं, खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं. एवरेज 20 से 25,000 स्टार्ट होगा एज एन एग्जीक्यूटिव, और उसके बाद अपने स्किल के हिसाब से बढ़ता जाएगा. एंड देन आई थिंक दिस
is the limit. Exactly. Great. रिजवान, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं अभी? आप आगे और क्या सोच रहे हैं? First of all, our the plans are we start the local, क्योंकि we are based in तेलंगाना स्टेट के अंदर जो है ना एक जो टाउन है वहाँ पे हम लोग एजेंसी फॉर्म किए. Our plan is to first we want to पहला तो हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो पूरा ग्लोबल है, मतलब लोकल से लेके जो है ना पूरा ग्लोबल है, वो वर्चुअल है, वो कोई भी स्टूडेंट कभी जो है ना आके कर सकता है. तो इंटर्नशिप है ये हमेशा रहेगा, ये ऑलवेज जो है ना इंटर्नशिप रहेगा एंड कोर्स भी रहेगा, दो भी जो है ना हम लेके चलेंगे. अच्छा, कमिंग टू कंपनी के जो प्लान्स है रिगार्डिंग सर्विस, अब इफ यू सी इन द विलेज टाउन्स एंड यू नो देहात में जो है ना कि वहाँ पे जो है ना इतना लोगों को नॉलेज नहीं है कि अपना ओन कारोबार ऑनलाइन कैसे प्रमोट करे. अच्छा, अगर शॉप भी नहीं है आपका, इफ यू डोंट हैव शॉप आल्सो, क्योंकि शॉप के लिए जो है ना आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा 10,000 रुपए शॉप के रेंट, देन फिर आपको एकदम आपको सारी बिजनेस है तो आपको सारी मंगवाना पड़ेगा, शॉप पे रखना पड़ेगा, फिर एक बंद रखना पड़ेगा. हम व्हाट वी आर डूइंग, वी वांट एजुकेट द कस्टमर कि इफ यू डोंट हैव बजट फॉर द शॉप, नो नीड, जस्ट अपने घर से ही आप ये डिजिटल मार्केटिंग जो है ना हम आपको जो है ना बताएंगे. सिर्फ आप घर से जो है ना आप ऑनलाइन स्टोर चला सकते हैं अपना, ऑनलाइन स्टोर. ये हमारा जो फ्यूचर प्लान ये है कि बस जितने भी लोकल बिजनेस है पहले हमारा जो नियर बाई, इनको एजुकेट करना, इनको ये बोलना कि आप बस स्टोर खोल के ओपन करके जो है ना कस्टमर कब आएगा, उससे अच्छा क्या है, यू हैव टू गो कस्टमर विद हेल्प ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. आप इसमें क्या है, इफ यू गो प्रिंट मीडिया, आपका प्रिंटिंग खर्च अलग होगा, डिजाइनिंग अलग होगा, लीफलेट जो है आजकल, हाँ, उसके बाद फिर फायदा क्या है, लीफलेट आप पढ़ोगे, आप नहीं पढ़ोगे, देखेंगे फेंक दोगे आप. इफ यू हैव डिजिटल वोचर या डिजाइन, कस्टमर डायरेक्टली जो है ना उसका पॉकेट चलेगा, वो पॉकेट क्या है आपका फोन. तो इसमें जो है कस्टमर दे हैव लॉट ऑफ जीबी, दे कैन स्टोर, दे कैन कॉल एनी टाइम. राइट, तो ये एजुकेट हमारा फ्यूचर प्लान क्या है, बोलते वी हैव टू फर्स्ट एजुकेट द कस्टमर लोकली, देन आहिस्ता जो है ना फिर सिटी वाइज जाएंगे हम लोग, फिर ऐसा जो है ना फिर ग्लोबल जाएंगे, बट फर्स्ट लोकल. ये हमारा एजुकेशन है, नेक्स्ट प्लान एजुकेशन देन सर्विस. ट्रेनिंग का जो है वो भी ऑब्वियसली है, हमारा जो लोकल कॉलेज से बच्चों के उनको पर्सनली जो है जाके उनको इन्वाइट करना हमारा ऑफिस पे कि आइए ट्रेनिंग लीजिए. लोगों को जो है ना आजकल जाते हैं इंटरव्यू पे बट दे डोंट नो हाउ टू स्पीक, कि कैसा एटीट्यूड रहना चाहिए एचआर सामने, इंटरव्यू स्किल्स क्या है. अपार्ट फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग आल्सो वी वांट टू गिव द मॉक इंटरव्यू, हाउ टू प्रिपेयर यू नो इंटरव्यू, जॉब जो भी है एंड जॉब अप्लाई करना है. ये स्किल्स सॉफ्ट स्किल्स बोलते हैं ट्रेनिंग. ये इसके साथ में डिजिटल मार्केटिंग जो है ना पूरा ग्लोबली हम और स्टूडेंट्स को है ना वी वांट टू रीच. वेरी गुड. ये दो हम प्लान्स है. पूछा. ग्रेट. सो मेरे ख्याल से आज एक बहुत ही फ्रूटफुल और बढ़िया इंटरेक्शन रही मोहम्मद रिजवान के साथ. थैंक्स. स्किल्स रिडिस्कवरी फैमिली की तरफ से आपको बहुत लक और सक्सेस विश करते हैं, एंड थैंक यू को और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को भी वेरी हैप्पी 2022. एंड थैंक यू. उम्मीद करेंगे कि और ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में हम मिलते रहें और एक दूसरे के साथ में मिलके ग्रो हो. श्योर. कि स्किल्स रिडिस्कवरी जो है वो एक ऑनलाइन स्किल्स एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है. अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में, इंग्लिश में, हिंदी में, ये तमाम लैंग्वेजेस में अलग अलग डोमेन्स से रिलेटेड कोर्सेज के ऊपर कोर्सेज होते हैं. आप उसको जरूर ये अफोर्डेबल प्राइसेस हैं और अपने फ्रेंड्स को भी आप उसको जरूर रेफर करें. और हम फिर मिलेंगे एक और तक के लिए. बाय.